Welcome to another episode of Shubham Mittal Show. Today we have very dynamic and amazing personality from our CA fraternity. He has been an international youth leader. He is a motivator, a change agent, trade and commerce representative, entrepreneur, economy and finance expert, policymaker, business leader, and a youth icon of our India. He is awarded with most prestigious awards like Agra Ratna Samman, Youth Icon Award, Business Leader, and Young Entrepreneur Award. Not only this, he has 14 professional qualifications including chartered accountancy, which includes company secretary, cost accountant, LLM, MCOM, MBA, MPG, MIB, MTM, MSc, and MA. That's right, 14 professional degrees. Because of this, Mohit is one of the world's youngest person who has acquired all this qualification at this young age by the age of 25. So let's welcome none other than a youth icon, Mohit Agarwal. Thank you, Mohit, for joining us on Thank the you show. so much, Shubham. I'm really grateful that you traveled all the way from Mumbai to my corporate office in Pune, and I'm lucky to have you today at my place. Thank you so much. It's an honor for me because I could interview you and share your wisdom, which we are gonna do in this interview. Thank you so much. Thank you. All right. So Mohit, tell us about your journey. How it all started first in place. So, Shubham, I belong to a place named Katangi. It's 110 kilometers from Nagpur. Uh, I had started my career in a very soft way. If I will recall myself in 1997 or 1998 when I was in class 8th, I never thought of that I want to go outside from Katangi and study my CA, CS, CWA, LLB, LLM, or so many and so far. But once I completed my 10th, I was pretty sure that I want to go outside Katangi and complete my studies. So even I'm from a science background, but after 12th I changed my field to finance, that is commerce field, and after 12th I had selected no, I need to go in finance and in commerce because I was having a keen interest in entrepreneurship and business and management. So I shifted my field from science to finance. I came to Pune in 2004, and while doing my CA, I realized that my seniors were doing company secretary also, cost and work accountancy also. Some were interested in LLB also. So I have I was having very specific thought process when I was in Katangi, and when I came to Pune, I was having bit larger perspective of me, bit larger version of Mohit Agrawal. So I thought that I have some unutilized potential as far as the time is concerned, as far as the energy is concerned, because in CA, in P1 I had excelled in my class, and when I was doing my studies, my all seniors used to tell me that Mohit, you really got amazing energy, hard work, dedication, patience. You are having mindset of a CA final student. Still, you are in CAP even. So that point of time, I realized that yeah, I have some untouched potential which I need to dig out. Okay. And then I subscribed for CS and CWA, and then later on I started my journey, and I completed my CA, my CS, my CWA,
my BCom, my MCom, my LLB, my LLM, my Masters in Investment Banking, Masters in Treasury Management, MSc in Psychology, and so on and so forth, and became the youngest person in the globe who is having highest number of professional qualification. So I just got an award in House of Commons in British Parliament as a Young Economic Global Leader Award. Wow. So, as far as my journey is concerned, it's very humble, and I'm really happy and satisfied that God had showered me from all the ways, as far as the education is concerned, as far as my social life is concerned, my political life is concerned, my business life is concerned, my personal and family life is concerned. So, God had showered me from all the ways. So, I'm really happy. That's an amazing story. And obviously, I know from fact and from the interaction we had that you are a humble person. But how do a person stay humble even after achieving so much success in a short span of time? So see, in Hindi there is a very good phrase which everyone uses कि फलदार पेड़ जो होते हैं वो झुके हुए होते हैं. It means a man who is having a lot more to serve, he should always be humble. So humbleness and kindness I learned from my mom and dad, because in my lifetime, whatever today I am because of my mom and dad. Uh, Everyone have their own idols, their own inspirations in life. In my life, I always look up to my mom and dad. I mean, one should always, but in my case, I'm too much dedicated towards them in my life. My mom is a very pious lady, very spiritual, and my dad is very social, very spiritual, and a very subtle businessman. So, being a seasoned player, I always checked from him that he's a very balanced person. So still, when I see my mom and dad, I always feel that they are equally giving time to society, for charity, for meeting new people, for doing best for downtrodden people of the society. At the same time, they are taking care of family. At this age also, my dad is 65, my mom is 60. But at this point of time, also we are residing in a more or less joint family, and I'm still seeing that there is a combination of Shakti and Shahan Shakti, which I always believe that Shakti and Shahan Shakti both are very important. Power itself can't give you whatever you want, because if you don't have patience level with you, you will not achieve what you want in life. So I had seen this Shakti and Shahan Shakti at my place at my very beginning of my career in my young days. That no doubt, whatever Shakti you have, until unless you have Shahan Shakti, you will not reach your proper goal. So that humbleness is kindness, I think, is the basic factor or basic fabric to live a happy and successful life. That's a very powerful mantra which everyone should follow in their life. How much success you gain, it doesn't matter. But if you are humble, success will come to you, and more importantly, people will come to you and they will respect you. Do you agree? I always believe that respect is what you earn over a period of time, Yes. which is directly proportional to the behavior you do, the mindset you have, the belief system you have, the knowledge you have. Because what I always say, satta, samriddhi, shakti, these all things come over a period of time. But if your intention and your behavior is still same without all such things, and it is still same after gaining all such things, then you are a complete man, you are a complete human being. जिसको बोलते हैं एक समृद्ध और सशक्त बनने के पहले शाश्वत बनना पड़ता है. सो शाश्वत बनने की जो प्रेरणा है वो शायद यहीं से चालू होती है. बिल्कुल. और क्या इसमें फैमिली का बहुत ज़्यादा रोल है, या फिर आपकी तो जॉइंट फैमिली थी, क्या ये वैल्यूज ये बिलीफ सिस्टम में उनका भी रोल है? मैं मानता हूँ कि 100% रोल उन्हीं का है. बिकॉज जब एक दाल बहुत पतली होती है और जब वो उगना चालू होती है तो उसको मोड़ पाना बहुत इजी होता है.
जब वो दाल मोटी हो जाती है तो उसमें आप शेप नहीं दे सकते हैं। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो आप उनको जिस रंग में डालेंगे, जिस वेशभूषा में डालेंगे, जैसा उनका थॉट प्रोसेस डेवलप करेंगे, जैसा उनका बिलीफ सिस्टम डेवलप करेंगे, वो वैसे ही हो जाते हैं। सो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जीवन के शुरू के 14 साल आदमी के आने वाले 80 सालों की नींव रखते हैं। सो मेरे जो 14 साल थे शुरू के, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट। मेरे 2 चाचा हैं, मेरे ताऊ जी हैं, और मेरे दादाजी के 5 भाइयों का बहुत बड़ा परिवार, और बड़ा आदर सम्मान देखा है मैंने अपने जीवन में। मैंने एक परिवार का जो एक वैल्यू सिस्टम होता है, मैं उसमें से गुजर के आया हूँ। सो मुझे मालूम है कि उस वैल्यू सिस्टम की बहुत ज़्यादा अहमियत है, और जो मैं शक्ति और सहन शक्ति की बात करता हूँ, ये वहीं से आती है। जब आप इतने बड़े परिवार में रहते हैं तो आप शक्तिशाली होते हैं, और वही परिवार के साथ में आप जब रहते हैं तो आप सहन शक्ति अपने आप में डेवलप हो जाती है। बिकॉज यू हैव टू एक्नॉलेज, जब आपसे कुछ गलती हो जाए तो आपको सुनना भी पड़ता है, जब आप कुछ अच्छे करते हो तो आपकी पीठ भी थपथपाई जाती है, और you have to maintain that kind of relation with everyone. You cannot be self centric. So हम लोग जो वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, वेलफेयर स्टेट के पहले सबसे पहले वेलफेयर फैमिली होती है। सो वेलफेयर फैमिली से ही वेलफेयर स्टेट की नींव रखी जा सकती है। बिल्कुल, चैरिटी बिगिंस एट होम। Absolutely. I always believe law begins at home. That's very true. So Mohit, you acquired so many degrees. You have 14 professional degrees with you, and that too you acquired at a very young age, which is considered as only one of the only person you are in the world who has achieved so many degrees at a such young age. What made you to do one after another 14 degrees? So there is a person named Shrikant Jishkar from Nagpur. Okay. So in my young days, when I was in class 9th, 10th, at that point of time he was alive, although he died in a road accident in, I think, 2003 or 4. So when I got to know that he's no more, and I used to follow him in 2000, from 2001, 2002, I used to follow him. Follow him in the sense, I used to read about him. People used to talk about him, Mr. Shrikant Jishkar. And when he left the heavenly abode, so one day I was talking to one of a good friend of mine. He was like, he was a great soul, and this generation need a person like him to guide the youth, and he was a very pious soul. So that night, I don't know what was there, but something was telling me that if some position is vacant, you should always fill. अगर कोई जगह खाली हुई है तो उसको कोई ना कोई तो भरता है। बिल्कुल। मैंने उस चीज का मानसिक बीड़ा उठाया कि भाई मैं कोशिश करूंगा, और मैंने उस दिन मैंने अपनी इस चीज को ध्येय बना लिया सेकेंड ईयर में 2005 में, that no, I should make again record in a different way, because आज तक किसी ने प्रोफेशनल डिग्रियां नहीं करी है। MA, BA, BCom, ये सब चीजें तो बहुत लोग करते हैं, और बहुत सारे इस टाइप के आपको अकाउंट होल्डर्स और डिग्री होल्डर्स और रिकॉर्ड होल्डर्स मिल जाएंगे, लेकिन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इट्स अ रियली टफ जॉब। सो लाइक CA, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंसी, लॉ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ट्रेजरी मैनेजमेंट, ये सब प्रोफेशनल डिग्रीज हैं। ये प्रोफेशनल डिग्रीज को शायद एक को करने में ही मैं ऐसा मानता हूँ कि 5 साल 6 साल मिनिमम लगते हैं, और आदमी की ताकत निकल जाती है। टू बी वेरी फ्रैंक, उतनी एनर्जी आदमी में नहीं रहती। करते काफी लोग पीछे रह जाते हैं। You are a chartered accountant, you better know this. So ये सब चीजें काफी होती हैं, और उसके बाद फिर मुझे समझ में आया कि ये सब चीज़ों के लिए एकाकी मन लगेगा, एकाग्रता लगेगी, पेशेंस लगेंगे, साथ में बहुत हार्ड वर्क लगेगा, एक्यूरेसी लगेगी, फोकस लगेगा, क्लैरिटी लगेगा। तो मेरे को मालूम था मेरे को कौन सी डिश बनानी है, बट वो डिश के इंग्रेडिएंट्स मुझे धीरे धीरे मालूम पड़ना चालू हुए, और मेरे असूल का जीवन बहुत प्यार में और नाजों में गुजरा है। मेरे मम्मी पापा मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरा परिवार मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मेरे पूरे बहन भाई मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जब मैं 12th के बाद पूना आया, सो व्हेन आई रियलाइज कि उन लोगों ने बहुत
होप से, बहुत आशाओं से मुझे वहाँ से भेजा है। अपना जिगर का टुकड़ा जब कोई अलग करके भेजता है तो वो चाहता है कि उस जिगर के टुकड़े ने कुछ कमाल करके दिखाना चाहिए। सो मेरी मम्मी मेरे को हर समय फ़ोन पे रोज़ एक ही आशीर्वाद देती है, और उस समय भी देती थी कि बेटा स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। मैं हर समय पूछता था कि ठीक है, स्वस्थ तो रहना ज़रूरी है, व्यस्त भी रहना ज़रूरी है, मस्त कैसे रहा जाता है? तो मम्मी बोलती है मस्त मलंगों से सीखना चाहिए। मलंग होते हैं जो एकदम खुश रहते हैं, जो सब चीज़ों में पॉजिटिविटी ढूँढते हैं, और हर समय वो लोग इस इंपीरियल हाईवे से, एक स्पिरिचुअल वायर से कनेक्टेड रहते हैं। धीरे-धीरे मेरे को समझ में आने लग गया कि जो सैटिस्फैक्शन है, जो जीवन का एक बहुत प्यारा सुनहरा अंग होता है, वो मलंग होता है। कि जीवन का बहुत सुनहरा और प्यारा अंग होता है, वो मलंग होता है। और जो जीवन में सब कुछ कर पाता है, वो कुछ नहीं होता है, और जो जीवन में खुश रह लेता है, वही मलंग होता है। क्या बात है। कुछ लोग सब कुछ करने के बाद भी खुश नहीं होते, और कुछ लोग कुछ नहीं करने के बाद भी मलंग रहते हैं। मुझे समझ में आया कि सब कुछ करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन खुश रहना ये बहुत ज़रूरी है। कि ये सब चीज़ें घर से चालू हुई, और आज देखिए ऊपर वाले की इतनी नेयामत है, खूब दौलत, शोहरत, इज्जत, सभी चीज़ बख्श रहा है वो हम पे। और आप जैसे अच्छे दोस्त हैं जो इतनी हौसला अफजाई करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, एंड दैट इज व्हाट आई थिंक इज नीडेड। बिकॉज मैंने अपने इस 32-33 साल के जीवन काल में एक चीज़ बहुत अच्छी से जानी है कि पैसा आदमी कितना भी कमा ले, जब तक लोग नहीं कमाता आदमी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अधूरापन रहता है। और हम अब कोशिश कर रहे हैं कि अब अच्छे लोग कमाएं, आपके जैसे अच्छे दोस्त कमाएं। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ वो बात जब आपने बोला कि घर से हम आशा लेके निकलते हैं, दूसरी सिटी में जाते हैं। सेम चीज़ मेरे साथ भी थी। मैं जब राजस्थान से निकला, मुझे भी एक होप थी कि कुछ तो बड़ा करना है, सीए बनना है, कुछ तो आगे करना है, और उसी होप के साथ आगे धीरे बढ़ता गया। डेफिनेटली आगे भी और जाना है, और उस कदम पे पहुंचना है जहाँ पे दौलत शोहरत तो ठीक है, बट जो लोग हो, इज्जत हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम कितनी लाइफ इम्पैक्ट कर रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द थिंग व्हिच आई वांट फॉर माई सेल्फ एज वेल। देखिए, आपने इम्पैक्ट की बात कही तो मैं आपको बताता हूँ कि नेवर स्टॉप लर्निंग, बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप। आदमी को जीवन में पढ़ना लिखना कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिखने पढ़ने बंद करने से आदमी रुक जाता है, थम जाता है। और इम्पैक्ट का जो सवाल है वो मैं ये समझता हूँ कि आपके जो सोच है, आपका जो संवेदनशीलता है, आपकी जो एक समाज के प्रति आपका जो ऋण है, वो आपको ऐसे चुकाना चाहिए कि आपका जो अच्छा व्यक्तित्व है, जो आपका अच्छा व्यक्तिमत है, वो हजारों लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोगों तक पहुंचना चाहिए। मेरी लाइफ को मैंने गोल बना के रखा है कि मेरी लाइफ टाइम में मैं 200 करोड़ लोगों तक पहुंचूं। बहुत बड़ा गोल है शायद कि मुझे 200 करोड़ युवाओं को, 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मदर अर्थ, आई वांट टू टच बेस इन माय लाइफ टाइम बाय वर्ड ऑफ विजडम, by various means, by writing good books, by forwarding my thoughts via social media, via good videos, via good audiobooks. Because in this lifetime what I always believe is, अगर आप कुछ दे पाएं या ना दे पाएं, अगर आप एक अच्छी सोच दे पाते हैं, एक अच्छा जीवन जीने का तरीका दे पाते हैं, एक जीवन का सार्थक प्रयास दे पाते हैं, मैं अपने आप को धन्य मानूंगा कि अगर मैं या मेरे विचारों से या फिर मेरे जीवन जीने की शैली से अगर संसार का युवा प्रेरित हो, कुछ आगे करने के लिए उनको एक विजन मिले, एनर्जी मिले, वाइब्रेशन मिले, तो मेरा जीवन में आना सार्थक होगा। आपने बोला 200 करोड़, ऑब्वियसली बहुत बड़ा गोल है, और जो उनको देख रहे हैं शायद वो लोग 2 करोड़ का भी नहीं सोचते, बिकॉज लगता है कि अरे वहां कैसे पहुंचेंगे। तो आपका उस पर क्या विचार कि विजन कितना बड़ा होना चाहिए, और जो हमारा बड़ा विजन है क्या हम उसको अचीव एक्चुअली कर सकते हैं? देखिए, मैं हर समय ऐसा मानता हूँ कि विजन का मतलब ही वही होता है, दूरदृष्टि। आपकी दूरदृष्टि को मैं ऐसा बोलता हूँ कि आपकी फोरसाइट, आपकी जो आगे की जो सोच है, वो दूर इतनी भी नहीं हो कि अचीव करने में मुश्किल हो जाए, और दृष्टि इतनी भी छोटी ना हो कि आंखों में देखने के पहले ही वो खत्म हो जाए। सो इट शुड बी लेजिबल इनफ
इट शुड बी फार इनफ कि आप वहां तक पहुंच सकें, और इतना व्यापक तो होना ही चाहिए यार कि आपका जीवन जो है वो हजारों करोड़ों लोगों तक प्रेरणा बन के पहुंचे। और मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि अगर आप जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हैं या आपने जीवन में कुछ कीर्तिमान हासिल किए हैं, चाहे वो विद्या के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, समाज के क्षेत्र में हो, तो ये सब चीजें संसार के उस तबके तक पहुंचना चाहिए जो तबका आने वाले समय में इन्फ्लुएंस डालेगा। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जीवन का 1/4 हिस्सा या फिर इस संसार का 1/4 पॉपुलेशन यूथ की है, और ये जो यूथ है ये बाकी 3/4 पॉपुलेशन के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। सो अगर हम इस संसार में थोड़ा सा भी बदल लाना चाहते हैं, अगर हम इस संसार में थोड़ी भी चीज़ों को बढ़िया करना चाहते हैं, सो यूथ के साथ में एक प्रयास करना बहुत ज़रूरी है, उनका एक्सपीरियंस चेंज करना ज़रूरी है। जैसे कि मैं हर समय बोलता हूँ कि आपको क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो आपको कल्चरल शिफ्ट लाना पड़ेगा। और कल्चरल शिफ्ट कब आता है? जब आप यूथ को बताते हैं कि उनके माइंडसेट का कितना बड़ा रोल है, उनका कितना बड़ा इम्पैक्ट है उनके परिवार में, उनके समाज में, उनके देश में, उनके भूखंड में बहुत बड़ा रोल है। और आप जितने ही बड़े लीडर्स ले लीजिए, मैं नेल्सन मंडेला को खूब पढ़ता हूँ, महात्मा गांधी को खूब पढ़ता हूँ, जॉन एफ कैनेडी को खूब पढ़ता हूँ, अब्राहम लिंकन को खूब पढ़ता हूँ, स्टोइक फिलोसफी खूब पढ़ता हूँ, बुद्धिस्ट फिलोसफी खूब पढ़ता हूँ, जैनिज्म खूब पढ़ता हूँ, टाओइज्म खूब पढ़ता हूँ। ये सब पढ़ने के बाद मुझे जो जीवन का रहस्य है वो मैं यही समझ पाया हूँ कि जीवन निरंतर आप कितना अच्छा कर सकते हैं, खुद का भी और जो आपसे मिलते हैं या फिर जिनको आप कुछ दे सकते हैं उनका भी। अगर आप इस चीज को अच्छी से निभा पा रहे हैं तो आप सही रास्ते पे हैं। बिकॉज मैं तो खुदा का रास्ता इसी चीज को मानता हूँ कि जिसमें आप निरंतर बढ़ते रहें। आप अगर रोज डेवलप हो रहे हैं, अगर आप रोज ग्रोथ में हैं, कल का मोहित आज से और आज का मोहित आने वाले कल से डेवलप्ड है, समझ लो मोहित ठीक है। बिल्कुल। बिकॉज जब तक खुद का खुद से कंपैरिजन नहीं हो सकता, हर बीता हुआ कल आज मेरा अच्छा है, आने वाला कल मेरा आज से अच्छा होगा, ये छोटी सी थॉट प्रोसेस अगर हमारे अंदर में है तो हम लोग निरंतर बढ़ते रहेंगे। एंड दैट इज द ओनली लॉ ऑफ नेचर कि आप बढ़ते रहें निरंतर। बिल्कुल। एक और चीज़ मैंने जो समझी इससे, अगर आपके घर में लाइट है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे घर में लाइट है, नहीं, अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तो प्लीज स्प्रेड दैट लाइट टू अदर हाउसेस आल्सो। एब्सोल्युटली। जो भी आस में गली है, अगर आप कर सकते हैं कि पूरे शहर में कर सकते हैं तो पूरे शहर में करो, बट उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि मेरा इंटेंशन क्या है। सिर्फ ये नहीं कि मेरा घर सुखी है तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। सी एक होता है इसमें मेंटालिटी का बहुत बड़ा सवाल है। एक होता है स्वार्थ की मेंटालिटी, एक होती है पुरुषार्थ की मेंटालिटी, एक होती है परमार्थ की मेंटालिटी। करेक्ट। सो ये जो 3 सर्कल है इसको समझना पड़ेगा हमें कि हमें स्वार्थ की मेंटालिटी वाले सर्कल में काम करता है, पुरुषार्थ की मेंटालिटी वाले सर्कल में काम करना है, या परमार्थ की मेंटालिटी वाले सर्कल में काम करना है। बहुत सेल्फ सेंट्रिक बनना है, एक वेलफेयर स्टेट में आना है, एक इक्वल डिवीजन करना है, या फिर हमको और मैं अगर आगे की बात बोलूं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनानी है। सो आई एम स्टॉन्च बिलीवर कि it should be a mix of capitalist and socialistic economy because 21st century is a financial century। यहाँ पे कोई भी इकोनॉमी, कोई भी देश, कोई भी समाज आगे तभी बढ़ेगा जब वो वेल्थ क्रिएशन करेगा। वेल्थ क्रिएशन आदमी तभी कर सकता है जब आदमी के पास एक बहुत अच्छा बैलेंस हो, सोशल का प्लस कैपिटल का। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज की जनरेशन में हमको बहुत जरूरी है समझना है। हम सिर्फ सोशल पे नहीं जा सकते, हम सिर्फ फाइनेंशियल पे नहीं जा सकते, दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मैं आपको बताता हूँ ना, लाइफ इज लाइक यू नो लर्निंग साइकिल। ट्रू। आप जब तक बैलेंस नहीं करेंगे आप जब तक गिरते रहेंगे। तो साइकिल है, चलानी पड़ेगी, रुको मत, आप धीरे चलाओ तेज चलाओ बट चलती रहे साइकिल। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि साइकिल को सबसे पहले बैलेंस करना सीखो। बिल्कुल, है ना। चलाने की बात तो ठीक है, बट जब तक आप बैलेंस नहीं करते हैं प्रॉपर
तब तक आपको समझ में नहीं आता कि यार इसको कैसे चलाना है, कैसे आगे बढ़ना है। बिकॉज जितना मैं समझता हूँ, और मैंने तो जीवन से ही सब कुछ सीखा है, जीवन के एक्सपीरियंस से सब कुछ सीखा है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सृष्टि भी सृजन करती है, हमारा जीवन भी वैसा ही है कि आप इसको अगर बहुत अच्छी समझना चाहते हैं तो उसको ऐसे समझ लीजिए कि आप जितने ज़्यादा बैलेंस में रहेंगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। हर चीज़ में आपको बैलेंस की ज़रूरत है, आपको बिजनेस में बैलेंस की ज़रूरत है, आपको पर्सनल लाइफ में बैलेंस की ज़रूरत है, आपको सोशल लाइफ में बैलेंस की ज़रूरत है। एवरीवेयर यू शुड हैव अ बैलेंस। और आपका बैलेंस है अगर, तो आप देख लीजिए यू विल बी द नंबर वन, नॉट इन द आईज ऑफ अदर्स बट एटलीस्ट इन आईज ऑफ योर्स। बिल्कुल, पहले अपनी नज़र में बड़ा बनो, उसके बाद दूसरों की नज़र में बड़ा बनो। एब्सोल्युटली सर। बिल्कुल। सो मोहित, आपके पास इतनी प्रोफेशनल डिग्रीज थी और बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हो सकता है एक के बाद एक डिग्री कर लें, और जो आजकल ट्रेंड भी चल रहा है कि सीए के साथ मैं सीएफए कर लेता हूँ, फिर मैं कुछ एफआरएम भी कर लेता हूँ, कुछ और भी कर लेता हूँ। क्या वही एक एंड है हमारी एजुकेशन का? नहीं 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 शुभम, इसमें मेरा बड़ा सिंपल डिक्लेरेशन रहेगा कि मैंने जो डिग्रियां ली है ये मैंने नॉलेज को बढ़ाने के लिए किया है। इसमें मेरा कोई भी दूसरा तात्पर्य नहीं था कि मेरे को डिग्रियां लेनी है, मेरे को एक लंबी लिस्ट बनानी है, या मुझे ये सब चीज़ें कोई रिकॉर्ड के लिए करनी है। नहीं नहीं नहीं, मेरा बड़ा सिंपल मत था कि मेरे को ये सब चीज़ें लेनी है और अपना नॉलेज एनहांस करना है, फाइनेंस की फील्ड में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में, लॉ की फील्ड में, मैनेजमेंट की फील्ड में, लीडरशिप की फील्ड में। सो जो आपका क्वेश्चन है कि क्या ये एंड है, ना 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 ना, ये तो स्टार्टिंग है सर। आप बताइए, सीए की डिग्री आपको मौका देती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बिल्कुल। आप समझिए, आप चॉकलेट की फैक्ट्री के ओनर हैं, या फिर आप सीए बन गए हैं। तो अभी सीए बनना इज लाइक मोल्ड बनाना, चॉकलेट की फैक्ट्री में मोल्ड बनाना। सो आपको चॉकलेट में ज्यादा इंटरेस्ट है या मोल्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है? आप सीए बनने के बाद उस मोल्ड, आप सीए की डिग्री को मोल्ड समझिए आप, और वो मोल्ड से आप जितने टाइप के अलग अलग उसको मोल्ड को ऐसा मोल्ड है कि आप उसको तुरंत चेंज कर सकते हैं और अलग अलग टाइप के चॉकलेट बना सकते हैं। आपने वो मोल्ड को ही चॉकलेट समझ लिया है। अरे भैया, सीए जो है वो फैक्ट्री है आइडियाज की। एक बार सीए बनने के बाद आप उससे जनरेट कीजिए एम्प्लॉयमेंट, उससे जनरेट कीजिए चीजें। आप अगर सोचेंगे कि नहीं मैं आज चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया हूँ, अब मेरी जर्नी खत्म हो गई है, अब कोई घर बैठे आके मेरे पास में पैसे छोड़ के चले जाए कि भैया आप तो सीए हैं, आप एक काम कीजिए 25,000 रुपए मैंने रखिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये आपको ऑथेंटिकेट करता है कि हाँ, आपके अंदर में हार्डवर्क करने की ताकत है। और मैं ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ सीए की डिग्री ऑथेंटिकेट करती है आपके अंदर हार्डवर्क करने की ताकत है, या जो सीए नहीं बने वो ये बोलेंगे कि क्या हमारे अंदर हार्डवर्क करने की ताकत नहीं है। नो 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 नो, मैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके लिए ये बात बोल रहा हूँ कि ये आपको ऑथेंटिकेट करके दिया है कि भैया आपके अंदर हार्ड लेबर, हार्ड वर्क करने की खूबी है, आपके अंदर एक गुड पेशेंस लेवल है, आपके अंदर आर्टिकलशिप जो किए हैं आपने 3 साल 3.5 साल, उसमें एक एटिकेट्स और मैनर्स का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन आ गया है। अब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में, प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर करने के बेसिक इंग्रेडिएंट्स को पा चुके हैं। अब इसके आगे में आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कीजिए, आप इसके आगे में पॉवर्टी इरेडिकेट कीजिए, करप्शन को दूर कीजिए, चीजों को डिजिटलाइज कीजिए, नए नए चीजों को लाने की कोशिश कीजिए, पुराने एक्ट में क्या फ्लॉज हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनको गवर्नमेंट के साथ में हाईलाइट कीजिए। सी, आपका एक सोशल मैसेज होना चाहिए हर एक आपके अचीवमेंट में। अगर आपके अंदर में सोशल मैसेज नहीं है, अगर आप समाज के लिए या समाज के उस तबके के बारे में नहीं सोचते हैं, तो इसका मतलब आपका जो अचीवमेंट है, आपकी जो सक्सेस है, वो सेल्फ सेंट्रिक सक्सेस है। आप इसको सक्सेस को थोड़ा सा बड़ा बनाइए, आपकी सोच को थोड़ा सा व्यापक रूप दीजिए, और आप देखिए आप कहां तक पहुंचते हैं। बिल्कुल। तो मेरा इसी से रिलेटेड एक सवाल है, एग्जैक्टली सक्सेस क्या है और क्या चीज के लिए मुझे आगे जाना चाहिए कि हाँ ये पॉइंट पे मुझे पहुंचना है?
सी इसका मापदंड है ना हर आदमी का अपने हिसाब से। हम्म। मेरे हिसाब से सक्सेस का मतलब है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल। मैंने अपने जीवन में आज इतनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ले ली, या मैंने आज 8-8 10 10 ऑफिसेज ओपन करके वी बिकम द इंडियाज बिगेस्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी consultant, we become the biggest name for various kind of work in DGFT and in customs and in investment banking, in the financial advisory arena. So मैं ये सब चीजों को सक्सेस मानूं? नहीं, बिकॉज अगर मैंने इनको सक्सेस मान लिया सो बात वहीं रुक जाती है। इट शुड बी एवरीडे प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग समथिंग न्यू टू यू, समथिंग गुड टू यू, as far as success is concerned. If you are creating an impact, if you are creating a differentiation in the society, if you are there as a champion of change, if you are there to help others, if you are there for your family, your friends, your society, then I believe that is the real success. आपको अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए अगर समय है, आपके पास में हर वो जरूरत को पूरा करने का साधन है, और आप वो साध्य हैं जिससे लोग खुश हो सकते हैं, और आप दूसरों की समस्याएं इरेडिकेट कर पाते हैं, सो देन ये मेरी डेफिनेशन है सक्सेस की। ये मेरी डेफिनेशन सक्सेस की। इट मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, बट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोहित अग्रवाल। एग्जैक्टली। सो इट शुड नॉट बी लाइक जो मोहित ने सक्सेस ली है वो मुझे भी चाहिए, नहीं, या शुभम की सक्सेस मेरी सक्सेस है, नहीं। तुम्हारी सक्सेस तुम डिफाइन करोगे। एक सीए को अपनी सक्सेस खुद डिफाइन करने की, मुझे ये माइलस्टोन पे पहुंचना है। एब्सोल्युटली शुभम, मैं आपको अगर मेरी बात बताऊं तो मैं रोज सक्सेस का जो पैरामीटर को टच करता हूं कि मेरा कल, आज और कल, ये मेरा सिंपल पैमाना है। मेरा आज कल से अच्छा होना चाहिए और आने वाला कल आज से अच्छा होना चाहिए। अगर ये पैरामीटर मेरा डिफाइंड है, अगर मैं रोज कल से कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ, कल से कुछ अच्छा हो पा रहा हूँ, तो मैं रोज सक्सेसफुल हूँ साहब। तो इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, ये सिर्फ एक प्रोसेस है, जर्नी है, आपको डेली करनी है साहब। बिल्कुल। कोई भी चीज को अगर आप इवेंट समझेंगे, सक्सेस इज नॉट अ इवेंट, इट्स अ प्रोसेस। It's a process. You cannot achieve overnight. और when will you achieve, you cannot tell. अब मैं ये तो बता नहीं सकता ना मेरे को मेरी वाइफ से कब प्यार हुआ था। प्यार है ये मैं बता सकता हूँ, किस दिन हुआ था ये तो मैं बिल्कुल नहीं बता सकता ना कि यार मेरे को है ना वो शादी के 2 साल 3 महीने और उस दिन हुआ था। नो नो नो, सक्सेस इज लाइक लव, you have, you know, you are experiencing, you know, it is developing, you know. When did it happen? You can't tell. ये कब हुआ है? No, आप नहीं बता सकते। ये प्रोसेस है। It doesn't matter also. Yes, absolutely. As far as timelines अगर फिक्स हैं तो ये मैटर नहीं करता है। और आपको दुनिया को नहीं बताना है कि सक्सेस मेरे लिए क्या है। अगर आपको लगता है आप सक्सेसफुल हो तो that's enough, right? Absolutely, because see, मैं वापस आपको बता रहा हूँ, आपकी डेफिनेशन ही मेरे से अलग होगी तो आप कभी मेरी सक्सेस को समझ ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल भाई ये सब चीजों में तो हर आदमी की अपनी एक डेफिनेशन है, और मेरी डेफिनेशन आपकी डेफिनेशन से अलग है, तो आप तो कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि मेरी सक्सेस क्या है। सो मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि हर आदमी का एक सक्सेस का पैमाना है, और उस पैमाने पे अगर वो खरा उतर पा रहा है और वो अगर अपने आप से खरा है तो समझ लीजिए कि वो एकदम परफेक्ट लाइन पे है। बिल्कुल। सो इसी से रिलेटेड मैं जब सोचता हूँ, और मैं काफ़ी मैसेजेस आते हैं मुझे, सोशल मीडिया से देखता हूँ, काफ़ी पुराने दोस्त हैं सीए बन गए, कुछ जॉब कर रहे हैं, जॉब उनको पसंद नहीं है, काम उनको पसंद नहीं है, एम्बिशन वो हो सकता है पहले उनके पास थी बट वो धीरे धीरे मरती जा रही है क्योंकि वो उस पर कभी एक्शन नहीं लेना चाह रहे। उनको लगता है कि मेरी जॉब इज इनफ, जो मुझे 5 लाख 10 लाख 15 लाख मिल रहा है दैट्स इनफ। क्या वैसी लाइफ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की होनी चाहिए? देखिए क्या होता है मालूम है, देयर आर 2 काइंड ऑफ मेंटालिटी। यस, एक होती है एम्प्लॉयर मेंटालिटी, एक होती है एम्प्लॉय मेंटालिटी। बिल्कुल। अब आपको कौन सी वाले तबके में अपने आप को कौन से वाले पड़ले में आपको अपने आप को नपवाना है वो आप देखिए।
एम्प्लॉय मेंटेलिटी होती है कि एक लंच 2 पंच लाइफ अटेंश कि बस एक बढ़िया लंच हो जाए, ऑफिस में 2-4 पंच मार दिए और बॉस को शाम को रिपोर्ट भेज दी, एमआईएस भेज दी, काम खत्म। एक होती है कि यार मैंने क्या क्रिएट किया, True. मैंने क्या इनोवेट किया, मैंने क्या प्रोड्यूस किया, मैंने क्या नया किया, मुझसे मैं क्यों इनविंसिबल हूं, मैंने अपने आप में क्या डेवलपमेंट लाया, मैंने अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स को क्या सुधारा, इस साल मेरी स्किल में क्या परिवर्तन आए, मैंने क्या चीज नई एक्वायर करी, मैंने ऐसी क्या चीज है जिसके ऊपर वर्किंग करी और रिजल्ट्स दिए, मैं कितना रिजल्ट ओरिएंटेड हूं, मैंने और क्या डेवलप होना है, कौन सी फील्ड में मुझे इंप्रूव होने की जरूरत है, मेरे एम्बिशंस के साथ में कौन से पैरेलल पैरामीटर्स हैं जिन पे मेरे को वर्क करने की जरूरत है। ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सोचें कि ये कर लिया है, इतने में मैं सीमित हूँ, इतने में उचित हूँ, आप समझिए आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आवश्यकता होना बहुत जरूरी है तभी आविष्कार होते हैं, वैसे ही जीवन में जब तक एम्बिशन नहीं है ना, फायर नहीं आता यार। वो फायर जरूरी है, फायर अंदर से आना चाहिए। एक्सटर्नल रीजन और एक्सटर्नल सीजन ये ज्यादा दिन नहीं टिकते हैं कि एक्सटर्नल रीजन और एक्सटर्नल सीजन ज्यादा दिन नहीं टिकते हैं, अंदर से आना चाहिए कोई भी चीज। लोग जो मोटिवेशन बाहर ढूंढते हैं वो अंदर से आना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको बोल रहा हूँ एक्सटर्नल रीजन और एक्सटर्नल सीजन ज्यादा दिन नहीं टिकते हैं साहब, जो होता है अंदर से आना चाहिए। करेक्ट। एक होता है एक्सटेम्पोर जो आदमी दिल से बात करता है, एक होता है स्क्रिप्टेड जो लिखा हुआ है फिर याद किया है फिर बोला है। बिल्कुल। तो यार वो जो अंदर से आता है ना वो ज्यादा इम्पैक्ट करता है। वेरी ट्रू। आपको ये समझना पड़ेगा। आप देखिए, वैसे मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को एंडोर्स नहीं करता हूँ, एटलीस्ट ऑन दीज काइंड ऑफ चैनल्स, बट आई एम गिविंग यू एग्जांपल। आप हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखिए, वो अंदर से बात करते हैं। स्क्रिप्टेड नहीं मिलेगा आपको, हो सकता है कोई लिखे भी उनके लिए, कोई लिखता भी हो, बट आप जब भी आप उनको सुनेंगे वो एक्सटेम्पोर बोलते हैं, दिल से बोलते हैं। ऑल्दो काफी लोग उनका काफी चीजों के लिए चीजों के ऊपर मजाक भी बनाया जाता है बहुत सारी चीजों पे, बट यू नो ये पॉलिटिकल गेम है, वो सब चीजें अलग है। मेरे जो बोलने का तात्पर्य है वो यही है कि एक्सटेम्पोर, दिल से बोलना, दिल की सुनना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा काम में आती है। दिमाग से सोचने वाला आगे बढ़ता है, दिल से सोचने वाला बहुत आगे बढ़ता है। That's an amazing difference. So, दिल और दिमाग आपको समझना पड़ेगा आपको किससे सोचना है। सिर्फ दिमाग से सोचोगे तो आगे जाओगे, बट अगर दिल से सोचोगे तो बहुत आगे जाओगे। देखिए, मैं हर समय बोलता हूँ कि आपको फॉर एग्जाम्पल मेरी चेयर पे बैठना है, तो आप दिमाग से बैठ पाओगे कि नहीं पाओगे वहां पे मालूम नहीं, लेकिन दिल अगर आपका खुला करके अगर आप डिसीजन मेकिंग करते हैं तो शायद वो चेयर पे एक दिन बैठ पाए। तो मैं इमोशनल कोशेंट और इंटेलिजेंस कोशेंट, ये आपका आईक्यू और ईक्यू का जो बैलेंस है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने वाला बंदा हूँ। मैंने एक कंसेप्ट निकाला है टेक्नो स्पिरिचुअलिटी का, कि आज हर जगह स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, हर जगह टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, कहीं पे टेक्नो स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं हो रही है कि हम लोग स्पिरिचुअलिटी को और टेक्नोलॉजी को कैसे कंबाइन करके जीवन को बड़ा बनाएं या लाइफ की एक लार्जर पिक्चर हम लोग देख पाएं या दिखा पाएं। मैं बहुत सारे योग गुरुओं को सुनता हूँ, आध्यात्मिक गुरुओं को सुनता हूँ, बहुत बड़े बड़े टेक्नोलॉजिस्ट को सुनता हूँ, टेक्नोक्रेट्स को सुनता हूँ। मैं सोचता हूँ यार इन दो लोगों के बीच में अगर कॉम्बिनेशन किया जाए कि टेक्नो और स्पिरिचुअल को मिला के टेक्नो स्पिरिचुअलिटी बनाया जाए तो कैसा रहेगा। मैं आपको बताऊं, मैं काफी कुछ चीजों के ऊपर विचार करता हूँ। आप बोल सकते हैं यार पढ़े लिखे होने का ये भी थोड़ा सा माइनस पॉइंट है कि आदमी बहुत विचारक बन जाता है। विचारक ऐसे हो जाता है कि उसके पास में बहुत सारी चीजें आती है कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, और उससे ग्लोबल चेंज आ सकता है। मैं सोचता हूँ कि माइंड सेट के साथ साथ हार्ट सेट होना जरूरी है, स्किल सेट होना जरूरी है, हार्ट सेट होना जरूरी है, सोल सेट होना जरूरी है। सो ये सब चीजें जो हैं बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मैं भारत में काफी मोटिवेशनल स्पीकर्स को और इन लोगों को सबको कभी कभी मौका मिलता है तो सुनता हूँ, देखता हूँ, वो लोग सिर्फ माइंडसेट पे बात करते हैं।
माइंड सेट अकेला क्या करेगा अगर तुम्हारा हेल्थ सेट काम नहीं कर रहा है? तो बिल्कुल तुम्हारा दृष्टि तुम्हारी है लेकिन तुम्हारी सृष्टि नहीं है, तुम्हारा नेचर ही नहीं है कोई चीज को अडॉप्ट करने का, तो दृष्टि से क्या कर लोगे? तुम्हारा विजन कितना भी स्ट्रांग हो, तुम्हारा नेचर ही नहीं है काम करने का, क्या कर लोगे तुम यार? सृष्टि बहुत जरूरी है, नेचर काफी जरूरी है। तो विजन के साथ साथ में आपका एम्बिशन के साथ साथ में आपका नेचुरल प्रोसेस से काम होना भी बहुत जरूरी है। आपका हार्ट सेट, आपका सोल सेट, आपका माइंड सेट, आपका स्किल सेट, आपका हेल्थ सेट, ये सब साथ में काम करना चाहिए। और जब ये साथ में काम करता है तो चर्निंग उतनी ही अच्छे से होती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में आ जाते हो आप। बिल्कुल कि आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल में आ जाते हो। बीइंग ए फाइनेंस एंड बीइंग ए इकोनॉमिक्स गाय, मैं हर चीज में ये सब चीजों को देखने और समझने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। तो जब विजन हमारा बड़ा हो रहा है तो वहाँ पे एक और पॉइंट जो मुझे समझ में आता है, काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने आप को लिमिट कर लेते हैं कि ऑडिट, टैक्सेशन या फाइनेंस है। क्या वही एक दायरा है कि सीए को अपने को लिमिट कर लेना चाहिए, या उनके पास लाखों अपॉर्चुनिटीज, उनको जो चाहिए वो अडॉप्ट करें और उसके अंदर अपना नाम कमाएं? शुभम, मैं लाइफ में लिमिट को कहीं मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये जो लाइफ है ना, ये इटसेल्फ इज अ लिमिटलेस गेम। बिल्कुल। मेरे को शुरू से ही अनलिमिटेड खेलना पसंद है। मैं जिंदगी को भी एक खेल मानता हूँ और इस खेल को भी मैं लिमिटलेस होकर खेलना चाहता हूँ। आप दायरे, सीमाएं किस चीज में बनाने की कोशिश कर रहे हैं? व्यापार में, प्रोफेशन में, किस चीज में और क्यों? आपकी सीमाएं जो हैं वो होनी चाहिए आपकी सार्थकता में। आपकी सीमाएं होनी चाहिए आपकी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक आपके बिहेवियर में। सीमाएं व्यापार में नहीं होती है। व्यापार, आपका लाइफ, ये लिमिटलेस होना चाहिए, ये बॉर्डरलेस होना चाहिए। बिल्कुल। हम लोग बात करते हैं वासुदेव कुटुंबकम की, संसार ही हमारा परिवार है और हम लोग उस मेंटालिटी के लोग हैं। जब हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं तो फिर ये कहाँ से आ गया बीच में कि नहीं मेरे को तो इतना ही करना है, मेरे को तो उतना ही करना है? बॉस, आप एक फाइनेंस के, आप एक अकाउंट के, मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं। आपके लिए पूरा व्यापार, कॉमर्स इंडस्ट्री पूरी खुली हुई है। आप अपने आप को सीमित मत कीजिए और आप तो नीश एरिया ढूंढिए यार। बिल्कुल। आज वैल्यू एडिशन का, और वैल्यू एडिशन के साथ साथ में इकोनॉमी में काम करने का बहुत बड़ा गैप है मार्केट में। बिल्कुल। मैं जानता हूं नए जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अब ये तो आपकी लाइकिंग्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपको ऑडिट में लाइकिंग है तो आप जाइए, टैक्सेशन में लाइकिंग है जाइए, अकाउंटिंग में लाइकिंग है जाइए, कॉम्प्लायंसेस में लाइकिंग है जाइए आप। बट एट द सेम टाइम आज बहुत सारी फील्ड्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, फाइनेंस में, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस में, डेट सिंडिकेशन में, मर्जर्स एंड एक्विजिशन में, वैल्यूएशन में, ऑडिट में भी, ऑडिट इटसेल्फ में भी इतने सारे पैरामीटर्स हैं। मैनेजमेंट ऑडिट होने लग गया आजकल, सिक्योरिटी ऑडिट होने लग गया, सेफ्टी ऑडिट होने लग गया, इकोनॉमिक ऑडिट होने लग गए, सोशल ऑडिट होने लग गए, आपके पास बहुत फॉरेंसिक ऑडिट होने लग गए। आपके पास में बहुत बड़ा दायरा है टच करने के लिए। आप कीजिए टच, कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल। कि आप कीजिए टच, कोई तकलीफ नहीं है, बट आप अपने आप को लिमिट मत कीजिए। yes. क्योंकि आप अपने आप को खुद बांधने की कोशिश कर रहे हैं। True. पुराने समय में ऋषि मुनि बोलते थे कि अपने आप को लिबरेट करो, और अभी आप लोग अपने आप को बांध रहे हैं। तो ये आप किस धारा के प्रवाह में जा रहे हैं, आई डोंट नो। कि किस धारा के प्रवाह में जा रहे हैं, आई डोंट नो। हम लोगों की संस्कृति जो है वो लिबरेशन की बात करती है, बिल्कुल, मुक्ति की बात करती है, अपने आप को खोलने की बात करती है, अपने आप को लिमिटलेस बनाने की बात करती है। मैं, मेरे से पर्सनली पूछोगे कि आप कौन से प्लेयर, तो मैं बोलूंगा इनफाइनाइट गेम के प्लेयर हूँ। कि मैं इनफाइनाइट गेम खेलता हूँ, लिमिटलेस गेम खेलता हूँ, बॉर्डरलेस गेम खेलता हूँ, इनफाइनाइट। वो मेरे को तो वो जो उसका इनफाइनाइट का साइन है उसी से प्यार है। तो एक सीए को अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए। सिर्फ इससे हमारा ये क्रक्स निकलता है, आपको जो करना है अपनी लाइफ में आप कर सकते हो। सिर्फ मैंने 3 साल आर्टिकलशिप की ऑडिट में, इसका ये मतलब नहीं आप अगली 30 साल भी ऑडिट में ही निकालो, इवन इफ यू डोंट लाइक इट।
और इसमें ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी का आप क्या समझते हैं कि जब मैं कोई प्रैक्टिस चालू कर रहा हूँ, बिजनेस चालू करता हूँ, काफ़ी लोग बोलते हैं कि अभी कंपटीशन बहुत है, पैसा कैसे कमाऊँ मैं प्रैक्टिस में, तो आपका क्या विचार है और उसको ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? जैसे कि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे शुभम ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी के ऊपर, आई ऑलवेज बिलीव दैट यू शुड बी इनविंसिबल इन द मार्केट। आज का समय नो डाउट जैसा आपने बताया कंपटीशन बहुत है, लेकिन कंपटीशन को खत्म भी आप ही कर सकते हैं और आपका कंपटीशन भी सिर्फ आप ही बन सकते हैं। आप ये सब कैसे करते हैं? आप मार्केट की ज़रूरतें समझें, मार्केट की ज़रूरतें समझ के मार्केट एनालिसिस करें कि कौन सी ज़रूरतें अभी अभी भी मार्केट की अच्छी से आइडेंटिफाइड नहीं है और अभी भी उनको पूरा करने के लिए प्रोफेशनल्स आगे नहीं आए हैं या प्रोफेशनल्स ने उस चीज़ को अपना प्रोफेशन नहीं बनाया है। आप ऐसी फील्ड चूज करके, आप ऐसा दायरा चूज करके अपने आप को जितनी भी आपके कंपटीशन वाली चीजें उससे बाहर निकालिए और आप एक ऐसी ब्लू ओशन स्ट्रेटजी तैयार कर लीजिए, अपने आप को उस फील्ड में इतना एक्सपर्ट बना लीजिए, उस फील्ड का बादशाह बना लीजिए कि जब भी उस फील्ड में उस स्पेसिफिक एरिया का नाम लिया जाए आपका नाम सिनोनिम हो जाए। कि जिस दिन फाइनेंस का, जिस दिन मोहित अग्रवाल का जिक्र होना ही चाहिए, सीए डॉक्टर मोहित अग्रवाल शुड बी सिनोनिम विद द फाइनेंस, विद द फाइनेंशियल पॉलिसीज, विद द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, with the for industry leadership। ये सब चीज़ों के लिए आप अपना खुद का स्थान कैसे क्रिएट करते हैं ये आपको खुद को मालूम होना चाहिए। बिल्कुल। और नो डाउट आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत लेबर है, बट हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। मैं जितना समझ पाया हूँ जीवन में कि आप जब भी कुछ भी मेहनत करते हैं तो आपको उसका जो फल है वो मिलता ही है। आप हार्ड वर्क एनी विच वेज आपकी उस जॉब में भी कर रहे हो जहाँ पे आप काम पसंद नहीं करते हो, तो हार्ड वर्क तो आपको एनी विच वेज करना ही है। 100% है। आप आपको घर पे बैठा के ऑफिस में बैठा के कोई पैसा नहीं देने वाला। आप आजकल तो 4x 3x 5x की बात करते हैं और कई जगह तो 10x की बात करते हैं कि भैया तेरा 15 लाख रुपए का अगर पैकेज है तो हमको तेरे से एक्सपेक्टेशन 1.5 करोड़ रुपए का है कि भैया तू इतनी बिलिंग करे। तो आई मीन ये बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जिसको बहुत अलग अलग रूप से देखा जा सकता है, बट मेरा पर्सनली ये मानना है कि आप कभी भी अपने आप को जॉब में समझो ही मत। आपको आपका थॉट प्रोसेस चेंज करना है तो आप अपने आप को हर समय एंटरप्रेन्योर समझो। हर समय जितना आप कमिट कर रहे हो या जितना सामने वाले पे एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा डिलीवर करो। एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि अंडर कमिटमेंट ओवर डिलीवरी। आप ये चीज को हर समय याद रखिए, अंडर कमिटमेंट ओवर डिलीवरी। आप सामने वाले की अपेक्षा से ज्यादा डिलीवर करो और बताते समय सामने वाले की अपेक्षा से कम अपने आप को बताइए कि मैं इतना दे सकता हूं। जब आप अंडर कमिट करके ओवर डिलीवर करते हो तो सामने वाले का जो आहा है वो डबल हो जाता है। बिल्कुल। कि वो बोलता है ओए होए 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 जी मोहित बाबू कमाल कर दिया, आपने तो बोला था ये 2 महीने में आएगा ये काम, ये तो आपने 1.5 महीने में ही ला दिया। या फिर अरे अरे हमारे को तो इतना ही आना था, अरे इतना आ गया पैसा। तो वो जब होता है तो वो अपने आप दिल से आ निकलता है आपके लिए कि आ आया है, कमाल है। और वो वर्ड ऑफ माउथ से फिर आपको आगे क्लाइंट्स देते हैं, वर्ड ऑफ माउथ से आपकी जो पब्लिसिटी है वो होती है। ऑल्दो मैं पब्लिसिटी मार्केटिंग ये सब चीज़ों का ऑल्दो आजकल प्रोफेशन में भी काफ़ी होता है, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि क्वालिटी डोंट हैव एनी लैंग्वेज बट स्टिल इट स्पीक्स। यस, कि क्वालिटी डोंट हैव एनी लैंग्वेज बट स्टिल इट स्पीक्स। आपकी क्वालिटी ऐसी जबरदस्त होनी चाहिए कि क्वालिटी बोलना चाहिए, आपको बोलने की जरूरत नहीं। इट शुड बी वर्ल्ड क्लास। एब्सोल्युटली इट शुड बी वर्ल्ड क्लास। हर एक चीज में जो यूजर एक्सपीरियंस है, जो क्लाइंट एक्सपीरियंस है, सर्विस सेक्टर में भी वो ऐसा आना चाहिए कि वो बोलना चाहिए कि अरे 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 कमाल है ये, कि कमाल है ये, वर्ल्ड क्लास। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है इस मार्केट में अगर आपको सर्वाइव और थ्राइव करना है तो। एब्सोल्युटली। मैं सर्वाइवल पे तो कभी जाता ही नहीं हूँ, मैं तो थ्राइविंग पे ही जाता हूँ। बिकॉज मैंने कभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा ही नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में मल्टीप्लिकेशन और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही देखी है। मैं मल्टीप्लिकेशन और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इसलिए बात करता हूँ बिकॉज आदमी की थॉट प्रोसेस ही वैसी बन जाती है। मैंने शुरू से मेरी थॉट प्रोसेस ही वैसी रखी हुई है कि भैया अपने को मल्टी फोल्ड जाना है, अपने को मल्टीप्लाई ही करना है चीज़ों को, अपने को एक्सपोनेंशियली ही जाना है। तो वो आदमी तभी करता है जब आदमी ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी फॉलो करता है। जब आदमी एक्सपोनेंशियल जाता है तो आदमी को मालूम रहता है कि नहीं, यहाँ पहुंचने के लिए हमको बहुत हार्ड वर्क की जरूरत है। नीश एरिया देखो, नीश मार्केट देखो,
पकड़ के उसमें एक्सपर्ट बन जाओ। ऐसे बन जाओ कि जिस भी दिन उस फील्ड का नाम लिया जाए, आपका नाम लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, गूगल पे अगर मैं वो फील्ड का नाम डाल रहा हूँ तो आपका नाम Absolutely, आना चाहिए। absolutely. That's called invincible. Absolutely. That's called invincible. Okay. So, Mohit, what do you suggest to young professionals who have just got the degree और maybe 1 या 2 साल हुआ है उनको सीए बने हुए, बट उनको अभी भी नहीं पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उनको अपने करियर को कैसे अप्रोच करना चाहिए? शुभम, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आपको सीए बने ही साल या 2 साल हुआ है और आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको पूरी लाइफ के आगे का मैप आपके सामने में आज आ जाए, तो ये आपको थोड़ा सा गलत नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी लाइफ जो आने वाले 70 साल की है, 60 साल की है, 50 साल की है, वो डिग्री लेने के बाद 2 साल में सब क्लियर हो जाए? मैं ऐसा समझता हूँ, और ये मैं नहीं समझता, ये रिसर्च भी है, जो जितना लेट सेटल होते हैं वो उतने ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप जल्दी सेटल हो गए तो आप सक्सेसफुल नहीं रहोगे, या मैं उस चीज को एंडोर्स नहीं कर रहा, ये रिसर्च है। सो आपके पास में जितना नॉलेज आ रहा है, या फिर आप जितना लेट अपने आप को समझ पा रहे हैं, कम से कम आप इतना इनफ टाइम दे रहे हैं अपने आप को कि आप समझ पा रहे हैं। आप उनसे पूछिए जिन्हें 15-15, 20-20 साल अच्छी फर्मों में, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, अच्छी फर्मों में काम करने के बाद उनको आज भी नहीं मालूम कि उनको करना क्या है लाइफ में। सो कम से कम आपके साथ में ये प्लस पॉइंट है कि आपको साल 2 साल में ये चीज का एहसास तो है कि यार क्या करना है, और जब आपको एहसास है क्या करना है तो आप उस एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं, मेडिटेट करते हैं, उसके ऊपर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो फिर आपको पता चलता है चिंतन मनन अध्ययन करने के बाद कि ऐसी क्या चीज है जिसमें गैप है और मैं इस गैप को कैसे फुलफिल कर पाऊंगा। जब आप वो नीश एरिया डिफाइन कर पाते हैं, डिफाइन करने के बाद उसमें अपना हाथ आजमा पाते हैं, और हाथ आजमा के जब आपको सक्सेस मिलती है तो उसमें एक्सपर्टीज ला पाते हैं, वही आपका आने वाले समय का कार्य क्षेत्र बनता है। तो आप कार्य क्षेत्र को बनाने के लिए या वर्किंग एरिया को चूज करने के लिए अगर बहुत हैस्टी हैं कि नहीं मेरे को तो साल भर में ही पता हो जाना चाहिए, मेरे को तो 2 साल में ही पता हो जाना चाहिए, तो साहब आप समझिए कि एवरीथिंग टेक्स टाइम। हर चीज का एक जेस्टेशन पीरियड होता है, आपको जेस्टेशन पीरियड देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, डिग्री करने में 4 साल लग गए आपको। 4 क्यों, 5 साल? 5 साल लग जाते हैं, वो भी एक छोटा सा फ्रैक्शन है लाइफ का। तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हमको 1 या 2 साल में पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी लाइफ को। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो सीए करने के बाद सीए की कभी प्रैक्टिस ही नहीं करें। हाँ। मैं काफी लोगों को जानता हूँ ऐसा कि सीए करने के बाद कभी सीए की प्रैक्टिस ही नहीं करें आज तक, ऐसे बहुत से लोग हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सीए बन गए हो तो ये नहीं कि आपको 1 साल में क्लैरिटी मिल जाएगी, बट यू शुड स्टार्ट अर्ली, जो आपने बताया पहले भी, आपको चालू करना पड़ेगा तब आप कहीं पे पहुंचोगे। जब चालू ही नहीं करोगे, आप अपने आप को समझोगे कि मैं नॉर्मल सी जॉब में मैं सेटल हो गया हूँ, तो वो फिर गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ेगी, और 10 साल बाद आप फिर से सोच रहे हो कि मुझे करना क्या है लाइफ में। एब्सोल्युटली। मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, अभी भी सेम चीज रिपीट करूंगा सर, आपको अपने आप को डे 1 से एंटरप्रेन्योरशिप में थॉट प्रोसेस में लाना पड़ेगा। आप जॉब भी कर रहे हैं तो एक एंटरप्रेन्योर की बहुत गजब सोच होती है, उसके कुछ फॉलोइंग ट्रेड्स होते हैं, वो ट्रेड्स आपको उस दिन से ही अपनी हैबिट में लाना चालू होना पड़ेगा। फर्स्ट you have to create your habit, then habit will create you. First you have to start believing in you, then create a system, then your belief system will start changing. So first you have to start a habit of following the traits of entrepreneurship while you are in job also, so that you will have commitment towards yourself to excel every day. जॉब में मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, मेरे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन थॉट प्रोसेस आपका एंटरप्रेन्योरशिप का होना चाहिए। थॉट प्रोसेस आपका होना चाहिए कि मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, कितना अच्छा क्रिएट कर सकता हूँ, और क्रिएट करने की जरूरत क्यों है, बिकॉज यू आर अ वेल्थ क्रिएटर, यू आर अ क्रिएटर, यू आर अ वेल्थ क्रिएटर। और आप सोचें कि मैं इस वेल्थ क्रिएशन के साथ में और 2 चीज कर लूं, तो प्लस प्लस है फिर आपके लिए साहब, वो तो बोनस है आपके लिए।
सो दिस इज व्हाट आई थिंक वन शुड लुक अप टू, कि मैं जॉब में नहीं हूँ, मैं एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग में हूँ। कि जो आप जॉब कर रहे हैं उसको भी आप एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग समझिए। आपके बॉस को आप उस समय तक मेंटर समझिए। बिल्कुल। उसको मेंटर समझेंगे तो उसके प्रति आपका जो देखने का तरीका है वो बदलेगा। वो जो काम बोलता है उसको करने में जो आपको अड़चन या झिझक होती है वो भी बदलेगी। सो आपको थॉट प्रोसेस बदलने की जरूरत है। बिल्कुल, सिर्फ एक माइंडसेट शिफ्ट चाहिए, उसकी वजह से बाकी सब चीजें change अपने आप एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मनस्थिति से आदमी की परिस्थिति बदलती है। होंगी। सो आप अपनी मनस्थिति बदलिए, आपकी परिस्थिति अपने आप बदलेगी। क्या बात है। Okay, so Mohit, you have a flag on a blazer, and there is a in that blazer which I can see, and that day when we met, it was there. And in your office also there is pillar of Ashoka. What is the significance of these things for you in your life? सी जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गर्यसी, बिल्कुल। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। मैंने मेरे उपक्रम का नाम भी मैंने द लीला ग्रुप रखा है। लीला मेरी माता जी का नाम है। मेरे ऑफिस में भी आप देखेंगे कि मेरे पिता के चरण पादुका है, जिसको मैं आके रोज परिस्थापित करता हूँ, रोज पूजा करता हूँ। अगर आप देखेंगे तो अशोका पिलर है, भारत का ध्वज है। सो ये सब चीज़ों का मेरे जीवन में बहुत विशेष महत्व है। मैं धार्मिक के साथ साथ देशभक्त भी हूँ। देशभक्त वो पेट्रियोटिज्म और वो जो जुमले हैं वैसे वाला नहीं, जिसको आप बोल सकते हैं कि एक दिल से कोई चीज निकलती है। सो मेरे दिल में देश रहता है और मैं शायद उसको अपने कॉलर के इस पार्ट में लगा के रखता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे इस ब्लेजर में यहाँ पे जी, ये एब्सोल्युटली। सो मैं 24/7 कैरी करता हूँ। कैरी करने का रीज़न ये है कि मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ अपने आप को कि मैं इस प्यारी भूमि पे मेरा जन्म हुआ, ऐसे देश में जन्म हुआ जिसका हजारों सालों का इतिहास है और हजारों करोड़ों सालों तक इसका इतिहास रहेगा। यहाँ पे ये राम और कृष्ण की भूमि है। यहाँ पे महावीर और कबीर जैसे विचारक हुए। यहाँ पे विनोबा भावे और महात्मा गांधी जैसे शुद्ध चिंतक हुए। यही वो भूमि है जहाँ पे मेरे माता पिता मुझे अच्छे अच्छे संस्कार दिए। और यही वो देश है जिसने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं आज दुनिया का इकलौता यंगेस्ट पर्सन बन पाया जिसके पास में हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। सो मैं इस देश का ताउम्र ऋणी हूँ कि इस देश की मिट्टी से मैं बड़ा हुआ। आदमी जब पैदा होता है उसके बाद आदमी जब ऐसा लंबा चौड़ा हो जाता है, सो उस लंबा चौड़ा अगर आप देखेंगे तो उसमें यू आर नथिंग बट हीप ऑफ फूड व्हाट यू आर ईटिंग। So that heap of food what you are eating is from this mother earth. So every single portion in my body is from this mother earth. और इस धरती का ताउम्र मैं ऋणी हूँ, ऋणी था और ऋणी रहूँगा। इसलिए मैं इस धरती को, इस देश को अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने जहन में, अपनी आत्मा में सब जगह बसा के रखता हूँ। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो आपकी देशभक्ति सिर्फ 26 जनवरी या 15 अगस्त को नहीं आनी चाहिए, वो एक हमेशा रहनी चाहिए। मैं आपको बताया ना, इट शुड नॉट बी इवेंट बेस्ड। मैं हर चीज में जैसे आपको बताता हूँ, नथिंग शुड बी इवेंट, इट शुड बी प्रोसेस, इट शुड बी हैबिट। आपके जीवन में, आपको जीवन काल में हर एक चीज को अपने जहन में उतारने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। और वो लंबे समय तक अगर आप एक जैसे कुछ काम कर पाते हैं तब आपके अंदर वो विचार आ पाते हैं, आपके अंदर वो आचार आ पाते हैं, आपके अंदर वो व्यवहार आ पाते हैं, आपके अंदर वो संस्कार आ पाते हैं, और तभी आप एक अच्छा व्यापार कर पाते हैं। जब आपका अच्छा विचार, आपका अच्छा आचार, आपका संस्कार, आपका व्यवहार आता है, उसके बाद आप व्यापार करते हैं। तो मैंने व्यापार में तो बहुत बाद में आया हूं। मैं विचार, संस्कार, व्यवहार, ये सब चीजों के बेसिक मायने में पहले से आया वो। सो देश, सृष्टि, ये सब मेरी बेसिक वैल्यूज हैं जो मैंने मेरे परिवार से, जो मैंने मेरे नियर डियर से,
जो मैंने जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ, उन लोगों के पास से अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने मिलती है। और मैं एक बहुत सिंपल लाइन कहता हूँ कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। आप जैसे लोगों के बीच में बैठते उठते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। यू आर द सम टोटल ऑफ फाइव पीपल यू कम्युनिकेट और सिट अराउंड। सो जो ये 5 लोग हैं, ये 5 लोग कौन है, ये आपको चूज करना पड़ता है। मेरे केस में पांचों के पांचों मेरे से डबल तिबल एज के हैं। सो जिनके साथ मैं बैठता हूँ, एक हमारे वीक फील्ड के चेयरमैन हैं मिस्टर बहारी मल्होत्रा। इन्हें मैं अगर नाम गिनाऊं तो बड़े प्यारे प्यारे लोग हैं। ऐसे ऐसे काफी लोग हैं जिनके साथ में, जिनके आज एज 85 80 75 ऐसी एजेस हैं, और उन्होंने अपने जीवन का इतना बड़ा एक्सपीरियंस जब वो मुझसे शेयर करते हैं, और मैं अपने आप को बड़ा कृतार्थ मानता हूँ कि मेरा उन लोगों से संबंध है जिन लोगों ने दुनिया को बहुत करीब से देखा है, और दुनिया के हर संबंधों को, हर एक्टिविटीज को, हर जगह इन्वॉल्व हुए हैं, और बहुत रिच एक्सपीरियंस लेके आज वो बैठते हैं। तो उनके साथ में उनके सानिध्य में मेरा जीवन बीत रहा है। आई एम रियली रियली हैप्पी। अमेजिंग। सो जब हम देशभक्ति की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एक आता है लैंग्वेज, दैट इज हिंदी। हाँ जी। बहुत लोगों को लगता है कि इंग्लिश हो गया ना सब कुछ है, हिंदी इज नॉट नथिंग। अगर मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे इंग्लिश ही आनी चाहिए। और व्यूअर्स में काफी लोग होंगे जो राजस्थान से या छोटी सिटीज से आते हैं, उनकी हो सकता है इंग्लिश अच्छी नहीं है, और वो सोचते हैं, जो मैं भी सोचता था कभी मुंबई आके, कि बहुत इंफीरियर हूँ मैं, इंग्लिश नहीं आती है। तो उस चीज से लेके आप क्या कहना चाहेंगे? ओ माय गॉड, ये तो मेरे बड़े आपने दिल के बड़े करीब क्वेश्चन पूछ लिया आपने। देखिए, मौसी के घर में आदमी कितना भी रह ले, लेकिन फाइनली माँ के घर में ज्यादा मजा आता है। सो मेरा इंग्लिश से कोई बैर नहीं है, मैं इंग्लिश को मौसी की भाषा बोलता हूँ, और मेरी माँ की भाषा तो हिंदी है साहब। और जो आदमी अपनी माँ को अच्छी से नहीं जान सकता, वो अपनी मौसी को तो कभी नहीं जान पाएगा। मेरा पर्सनली ये मानना है कि मेरी माँ को मैं बहुत अच्छी से जानता हूँ, ऑल्दो मैं अपनी मौसी की भी बहुत इज्जत करता हूँ। बट मेरी माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हिंदी मेरी माँ है, और हिंदी भाषा पे मुझे बहुत गर्व है, बहुत फक्र है। और हिंदी भाषा अपने आप में बहुत रिच है। कोई भी भाषा अपने आप में कमजोर नहीं होती, बट हिंदी भाषा की बात अलग है, बहुत विशेष है, बहुत विशिष्ट है। और आप समझिए, इवन आई हैव honorary doctorate in leadership and management also, and so many from other different places. I always believe inferior और superior ये आदमी की thought process होती है। अब जो आपका है, आपको उसको एक्सेप्ट करने में अगर आपको शर्म आ रही है, तो गलती उस चीज की नहीं है जो आपके साथ में है, गलती आपकी है। आप खुद, आपकी सोच इतनी इंफीरियर है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस भाषा को आज इतना बड़ा संसार यूज कर रहा है, और मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश ये दोनों बड़ी कॉमन लैंग्वेज है भारत में यूज होने वाली, लेकिन कहीं से भी इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी किसी चीज में नहीं है साहब। मैं ऐसा समझता हूँ कि जिस आदमी का अपनी खुद की भाषा में पकड़ नहीं है, वो कभी दूसरी भाषा में पकड़ लाने के काबिल नहीं हो सकता। आपको आपकी खुद की चीज को पहले मजबूत करते आना चाहिए, फिर आप बाकी चीजों को मजबूत कर पाते हैं। बिल्कुल। मेरे जीवन में हिंदी भी उतनी ही मजबूत है जितनी अच्छी इंग्लिश है। दोनों भाषाओं पे मेरा बहुत अच्छा कमांड है। उतना ही प्यार से मैं हिंदी बोलता हूँ, उतनी ही अच्छी से इंग्लिश बोलता हूँ, मराठी बोलता हूँ, पंजाबी बोलता हूँ, मारवाड़ी बोलता हूँ, गुजराती बोलता हूँ, काफ़ी फॉरेन लैंग्वेज बोलता हूँ, इंडिया की काफ़ी लैंग्वेजेस है वो बोलता हूँ, लोकल लैंग्वेजेस बोलता हूँ, ट्राइबल लैंग्वेजेस बोलता हूँ। मेरे को लिंग्विस्टिक होना ये मेरे खून में है। आई लर्न दिस फ्रॉम माय फादर। हमारे बहुत अलग अलग व्यवसाय हैं, उसमें जब लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो मैं देखता हूँ कि मेरी फैमिली जो है वो हर लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, हर लैंग्वेज में बात करती है। तो ये जो लिंग्विस्टिकनेस है, या आर्टिस्टिक फिलॉसफी है, भाषा का ज्ञान है, और समाज के साथ में जुड़ाव है, परिवार के इतने बड़े तबके में जो रहे हैं हम लोग, एक ज्वाइंट फैमिली का असर मैं आपको बोल सकता हूँ कि आज मैं अगर अपने आप को कहीं से भी परिपूर्ण मानता हूँ,
अगर आपको बोलूं, मैं अगर अपने आप को संपूर्ण मानता हूँ, मैं अगर आपको बताऊं कि मैं अपने आप को बड़ा कृतार्थ मानता हूँ, इसके पीछे में पूरा और पूरा मेरे परिवार का, मेरे माँ बाप का और मेरे भाई बहनों का, मेरे से जुड़े लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। मेरा हर एक एक्सपीरियंस उनसे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। सो जो भी छोटे शहरों से लोग आते हैं उनको लैंग्वेज को कंस्ट्रेंट नहीं मानना चाहिए, उनको ऑब्वियसली इंग्लिश इंप्रूव करनी चाहिए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को डीमोटिवेट करो कि मेरे को सिर्फ हिंदी आती है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। सरकार उल्टा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको कुछ तो आता है। बिल्कुल। हाँ, अरकत गगरी छलकत जाए, हाफ नॉलेज नथिंग। कुछ नहीं है, नो नॉलेज इज बेटर देन हाफ नॉलेज। ट्रू। सो आपको कोई भी चीज में, आप एक चीज में कम से कम अच्छे तो हैं, परिपूर्ण हैं आप। बिल्कुल। आप साधारण नहीं है। सर्वसाधारण से अच्छा है कि साधारण होना, और साधारण से अच्छा है विशिष्ट होना, और विशिष्ट से अच्छा है सर्वश्रेष्ठ होना। तो कम से कम किसी भाषा में तो आप सर्वश्रेष्ठ हैं। सर्वसाधारण होने, आई नो ऑर्डिनरी इंग्लिश, इट्स बेटर आई नो विशिष्ट हिंदी। That's very important point.